Hello everyone, myself Marciana Nicholas Sylvester, MSc first year, Sem 2. So today I am going to present a talk on complex analysis, and in complex analysis we will deal with functions that gives us an idea about the complex functions which are differentiable. So as we see in real valued functions, we study concepts like limits, continuity and differentiability. So in complex analysis, we study analytic function. Then in real analysis, we study about differentiability, and in complex analysis, then and there we study analytic functions. So let us see the definition of analytic function. A complex valued function W is equal to f of z is said to be analytic at point z is equal to z0 if. So a complex valued functions given by f of z is equal to w is said to be analytic if this condition is satisfied, that is dw by dz is equal to limit del z tends to 0 and this f z plus zz minus f of z divided by del z. If this condition is satisfied and this differentiability exists and unique at z is equal to z0, then the function is said to be analytic function. An analytic function is also called as regular function or holomorphic function. So, to discuss with this further, if you want to know whether a given function, that is w is equal to f of z, is analytic or not, we have certain conditions. Those are called as Cauchy-Riemann conditions that we will see now. So, the conditions for checking the differentiability of complex functions is given by Cauchy-Riemann equations. So, let us see what are they. So, if we consider a function, a complex function, if w is equal to u plus id, then a function is analytic if the following two conditions are satisfied. Those conditions are del u by del x is equal to del u by del y, del u by del y is equal to minus del v by del x. So if this differentiability conditions for the functions u, that is w, u plus id is satisfied, that is given by Cauchy-Riemann equations, then the function is said to be analytic. Let's see an example over here. If you want to find out that a function f of z is equal to z square is analytic or not. So, we will write z as x plus r the whole square. We will solve it further and we get the equation as x square minus y square plus 2i xy. Now, this is a function. If we compare it with u plus ib, then this will be our u and this one will be our v. So your u is equal to x square minus y square and v is equal to 2xy. So if we differentiate it with respect to x, y and same as we do with v, we get del u by del x is equal to 2x, del u by del y is equal to minus 2y, del v by del y is equal to 2x and del v by del x is equal to 2y. And from all these differentiabilities, we can find that del u by del x comes out to be equal to del v by del y and del u by del y comes out to be minus del v by del x. So the Cauchy-Riemann equations conditions are satisfied. Therefore, we can say that our function z square is said to be an analytic function. गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज कोमल सावस एंड माय पार्टनर मर्सियाना सिल्वेस्टर. उसने बताया कि कॉची-रायमन कंडीशन कैसे अप्लाई होती है. W इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी. देन हम u को डिफरेंशिएट करेंगे x से, del u बाय del x इज इक्वल टू v को डिफरेंशिएट करेंगे y से, del v बाय del y एंड u को डिफरेंशिएट करेंगे y से, del u बाय del y इज इक्वल टू माइनस v को डिफरेंशिएट करेंगे x से, del v बाय del x. फिर कंडीशन लगाएंगे z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. अभी हम एग्जाम्पल लेंगे f ऑफ z इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस आई टाइम्स साइन वाई. ओके, f ऑफ z इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस आई टाइम्स साइन वाई. फिर हम f ऑफ z इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आई टाइम्स e टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई. ये जो फर्स्ट टर्म होगी ये हमारा u होगा, u इज इक्वल टू e टू द
पावर माइनस एक्स कॉस वाई, एंड ये जो सेकंड टर्म होगी ये हमारा v होगा, v इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई। ओके, फिर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे u डिफरेंशिएट विथ x, फिर e टू द पावर माइनस एक्स, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस e टू द पावर माइनस एक्स सेकंड टर्म कॉस वाई एज इट इज। ओके, देन हम u को डिफरेंशिएट करेंगे y से, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज रखेंगे e टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई का डेरिवेटिव साइन वाई। ओके, देन सेकंड टर्म v डिफरेंशिएट विथ y। ओके, फिर इसको फर्स्ट टर्म एज इट इज रखेंगे e टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई का डेरिवेटिव होगा कॉस वाई। ओके, देन डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज e टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई एज इट इज। ओके, हम अभी चेक करेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं है इस कंडीशन को। फिर हम ये कंडीशन लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। अब चेक करेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं है। फिर डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, यहाँ पे साइन का डिफरेंस आ रहा है, सो ये कंडीशन डेल यू बाय डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, एंड सेकंड टर्म देखेंगे हम डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स। ये टर्म भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यहाँ पे भी साइन का डिफरेंस आ रहा है, सो डेल यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स। ओके, सो इन दिस इक्वेशन आर नॉट एनालिटिक। ओके, ये इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कंडीशन नॉट एनालिटिक है। ओके, देन हम सेकंड एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल लेंगे f ऑफ z इज इक्वल टू साइन ऑफ z। ओके, फिर हम एक इक्वेशन लेंगे, ये हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन एनालिटिक है या नहीं है। जो हम कंडीशन लगाएंगे z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ओके, f ऑफ z इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस आयोटा y। ओके, यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे साइन a प्लस b का। ठीक है, साइन a प्लस बी का हम फार्मूला यूज करेंगे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, साइन a कॉस b मतलब f ऑफ z इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ आयोटा y, साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ आयोटा y, देन इनटू आएगा यहाँ पे, सॉरी, प्लस यहाँ पे हम फिर पुट करेंगे cos a प्लस cos a इंटू साइन b, cos a इंटू साइन b मतलब cos x इंटू साइन ऑफ आयोटा y। ओके, फिर यहाँ पे हम हाइपरबोलिक फॉर्म लेंगे, जैसे कि यहाँ पे cos i y इज इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पे cos हाइपरबोलिक फॉर्म y। ओके, और साइन ऑफ आयोटा y को लिखेंगे हम साइन ऑफ हाइपरबोलिक फॉर्म y। ओके, यहाँ पे हम ये पुट करेंगे साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक फॉर्म y प्लस कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक फॉर्म y। ओके, देन हम इसको u कंसिडर करेंगे, u इज इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू कॉस हाइपरबोलिक फॉर्म y, एंड b कंसिडर करेंगे यहाँ पे कॉस x इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक फॉर्म y। ओके, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे, u डिफरेंशिएट विथ x करेंगे, डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x इंटू सेकंड टर्म एज इट इज। ओके, देन हम u को डिफरेंशिएट करेंगे y से, डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म एज इट इज रखेंगे और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, cos का डेरिवेटिव होगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक फॉर्म y, एंड देन हम v डिफरेंशिएट करेंगे y से, डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज रखेंगे एंड सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे साइन ऑफ, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव साइन का cos होगा, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे साइन हाइपरबोलिक फॉर्म y, देन
v को डिफरेंशिएट करेंगे x से, डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज रखेंगे साइन x इंटू साइन का साइन ऑफ हाइपरबोलिक फॉर्म y। अब देखेंगे कि ये इक्वेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। हमारी कंडीशन है डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x। ओके, हम चेक करेंगे यहाँ पे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। देखेंगे हम डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू कॉस x इंटू साइन एच एक्स वाई। फिर देखेंगे, ये देखो सेम हो गया। ये इक्वेशन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कंडीशन हमारी एनालिटिक है। इन दिस कंडीशन एनालिटिक। ओके, देन हम इसका निकालेंगे एफ डैश ऑफ जेड। ओके, देन लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल वी बाय डेल एक्स। फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। डेल यू बाय डेल एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस एच वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक फॉर्म वाई। ओके, और सेकंड टर्म हमारी है आई टाइम्स डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स माइनस, अब पे प्लस साइन आएगा, सॉरी, माइनस साइन एक्स इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक फॉर्म वाई। ओके, देन हम ये हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का ये फार्मूला है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, और ये हमारा फॉर्म कॉस एफ ऑफ जेड। ये कॉस ऑफ जेड ये हमारा साइन ऑफ जेड ये हमारा डेरिवेटिव है कॉस ऑफ जेड का। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है तो कॉची रायमंड कंडीशंस और भी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टॉप।